Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yatro paramate chetam niruddham yoga sevaya yatra chaivatmanatmanam pasyamatmani tushyati. The stage of perfection is called trance or samadhi when one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. This is characterized of one's ability to see the self by the pure mind and to relish and rejoice in the self. In the joyous stage, one is situated in the boundless transcendental happiness and enjoy himself to transcendental senses. Established thus, one never departs from truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. This indeed is the actual freedom from all miseries arising from material contact. This is a very beautiful translation, very inspiring translation. Boundless transcendent happiness, and to know there is no greater gain. So that is spiritual life. That is how we reject Maya, because there is nothing greater to get. When you chant Hare Krishna or when you do any other service to Krishna, Navavidha Bhakti, you find so much happiness. There is nothing greater to get. How nice it is. There is nothing greater to get. Everybody in this world is always oscillating like a ping pong. They try this enjoyment, doesn't work out. Try that enjoyment, doesn't work out. Correct? They're oscillating like a ping pong. But if you become sincere in Krishna consciousness. I discussed in the morning also this point, but evening some people are missing. Basically, sincere in Krishna consciousness, Krishna awards you some blessing. That's like you get employment, you get salary. So when you get employed in Krishna's lotus feet, you get some salary, that is Yogamaya. And that Yogamaya will give you unlimited spiritual happiness, correct? If you're not getting that, Krishna has not employed you till now. Say, you have a company, and I say I'm working for that company. I'm repeating that argument, but it's a good argument. Suppose you have a company, and I say I'm working for that company. I can imagine anything, but how do I know I'm working? You say, where is your salary receipt? That means you should be getting salary, then I'm working, no? So Maya, the salary, Maya will give you all Kama, Krodha, but Krishna will give you another salary, Yogamaya. Boundless spiritual happiness. That means Krishna is accepted. सभी लोग बोलते हैं हाँ कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, but Krishna has not accepted you till now. Because therefore we should become. Krishna is very merciful. It's not that he is tough. We should be sincere. So it doesn't matter. The sincerity doesn't matter by age or by anything. Anybody can be one day in Krishna consciousness, can be very serious. Possible. Exceptions are there to every rule. Correct? Anybody. But all Krishna is looking for our sincere attempt to serve him. Rest of the people are all cheating. They are going to Krishna, but they have some personal agenda. They are not going to Krishna to serve Krishna. कुछ अपना personal selfish program है. वो मिश्रित भक्ति. समझ रहे हैं? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत. Some people go कर्मीज भगवान के पास जाते हैं, लेकिन अपने इंद्रिय भोग का लिस्ट लेके जाते हैं. They have not come to serve Krishna. They have come to use Krishna. Krishna is not very pleased with them. Okay. Better than not come, better he came. आया तो चलो. And one day there is a hope he'll improve. If he doesn't come, he'll never improve. At least he came. Then mukti. Some people go to God because they want some powers. They want to rise in the air. They do some meditation. If they can, they live it themselves little. It's very powerful.
He is also in his personal agenda. His perfection of life stops at that siddhi, that's it. He doesn't want anything more. Therefore, he is actually called yoga bhrashta, the person who destroyed in his. समझ रहे ना, लोग उनको बहुत सफल समझते हैं, बट वी नो इज अ योगा भ्रष्टा. वो हार गया, आगे नहीं जा पाया, उसी में बीच में रह गया. कोई योग का सिद्धि मिल जाए बस खत्म. मूवी में क्या दिखाते हैं, सम स्पिरिचुअलिस्ट मीन्स ही हैज सम योग सिद्धीज, ही कैन डू सम भूसुम भूसुम. और भुक्ति, भगवान के पास जाते हैं, भगवान ये दिला दो, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए भयंकर, मंदिर भागते हैं, घंटे हिलते हैं, भगवान कुछ चमत्कार कर देते हैं. यस, गॉड कैन डू, बट दैट इज नॉट रियल मर्सी ऑफ कृष्ण. Bhukti. Mukti is also not real mercy. Some powers given. We are discussing in the morning how much power Ravana Kumbhakarna had. He doesn't become God because of that. कितनी पावर थी, पूरा दुनिया हिला दिया रावण कुंभकर्ण. One level. Bhukti, mukti. Bhukti, siddhi. Mukti, moksha. We are discussing about impersonalists. If they can get free from Rajoguna, Tamoguna, Satoguna, come to spiritual platform, they think life is perfect. Nothing. Still it is not perfect. Life become perfect when you become engaged in Krishna's service. They want moksha from this world. They understand this much. इतना समझ आ जाता है ये दुनिया बहुत दर्दनायक है और दुनिया से मोक्ष चाहिए. इसमें भी कुछ नहीं. अंगूर खट्टे हैं, दुनिया को भोग करने का बहुत प्रयत्न किया और थक गए, चलो दुनिया से वैराग्य चाहिए. ये भी कुछ नहीं है, वो भी अंगूर खट्टे हैं. अभी इंद्रिय भोग का दूसरा वस्तु आएगा, उस पर कूदेगा. ही हैज नॉट सीन हायर प्लेजर. इंद्रिय भोग से तंग आ गया है, लेकिन भगवान की सेवा का आनंद अभी उसने नहीं चखा है, इसलिए नहीं रह पाएगा. फिर आएगा इंद्रिय भोग में, गिरेगा फिर. ठीक है. बट भक्ति इज समथिंग दैट कृष्णा पर्सनली गिव्स. यू कैन नॉट अचीव इट बाय योर ओन एफर्ट. सिर तोड़ लो, नहीं मिलेगा. Pleasure of serving Krishna, Krishna gives. It is very, very rarely given. इसलिए most of the people in the society don't know what it is. They say it doesn't exist. See, 99% जो spiritualist हैं, जो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा के spiritual organization बनाया है, उनको मालूम भी नहीं है भगवान की सेवा का आनंद क्या चीज़ होता है. मालूम ही नहीं, इसलिए उसको मना करते हैं. सब माया है, भगवान का लीला भी माया है. भगवान भी वैकुंठ धाम से आए थे और माया में फंस गए. दे मेक्स ऑल दिस फनी इंटरप्रिटेशन. भगवान को कोई शक्ति है, कोई लाइट है, ऐसा बकवास समाज में फैलाते हैं वो लोग, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. बेसिकली वो लोग नास्तिक ही हैं. 99% लोग सोसाइटी में नास्तिक हैं. आस्तिक उसको बोलते हैं जो भगवान को इतना एक्सेप्ट करता है भगवान एक व्यक्ति है. ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, ये छुपा के रखा जाता है. धर्मस्य तत्तम निहिकम गुहायम महाजनो ये न गता न पंथा. जो बहुत महान भक्त है उनके दिल में भगवान की सेवा का आनंद छुपा रहता है. ये दुनिया में पता कैसे चलेगा? है किसके कहाँ है? यू हैव टू एक्सेस. नो, सब चीज़ कहीं होती है ना, कहाँ है? जो महान भक्त होते हैं भगवान के, उनके दिल में भगवान की सेवा का आनंद है. जनरली सोसाइटी में लोगों का दिल को आप प्रभाव उसको अनुभव करते हो. किसी के दिल में आप देखते हो इंद्रिय भोग का इच्छा है, तामसिक आदमी, जानवर. थोड़ा अच्छा हमने बात करी भुक्ति, थोड़ा इंद्रिय भोग की इच्छा थी, लेकिन भगवान के पास कभी नमस्कार करने जाता है, भगवान ये दिला दो मेरे को. वो जानवर ही है. थोड़ा बेटर है, भगवान के पास नमस्कार तो किया, जानवर नहीं बोलेंगे आप, उदार दिही, थोड़ा लिबरल है. द नेक्स्ट सिचुएशन, कोई आदमी है जो कुछ सिद्धि चाहता है, इसके लिए भगवान के पास जाता है. और कोई आदमी है भुक्ति मुक्ति और कोई मोक्ष चाहता है. लेकिन भक्त का दिल टोटली डिफरेंट है. कैसे? उसको इन दिलों में कुछ आनंद है, मोक्ष का आनंद है, कुछ सिद्धि का आनंद है और इंद्रिय भोग का आनंद है. भक्त के दिल में भगवान की सेवा का आनंद है. और ये शुरुआत होती है जैसे भक्ति लता बीज, छोटा सा स्पार्क की तरह, और बढ़ता रहता है.
और जब ये भगवान की सेवा का इच्छा, शुद्ध सेवा का इच्छा, जिसमें जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी हम किसी ने बनाया जागरी से आप शुगर बनाते हैं, तो उसको शुगर केन को उबालते रहते हैं और कचरा आता रहता है, निकालते रहते हैं। किसी ने खेती किया उसको मालूम होगा घर में, करेक्ट? तो सेम वे भक्ति भी ऐसा ही है। जब भगवान का आप सेवा शुरू करते हैं तो कचरा निकलता रहता है, उसको फेंकते रहो। नहीं फेंकते तो फंस जाते हो कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग में। किसको कर्मयोग, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी बोलते हैं? तो मतलब ही इज इमेच्योर। योगा इज ओनली भक्ति योगा, कोई और योग नहीं है। जब आप किसी और चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हो, वहाँ पे आप फंस जाते हो। जैसे स्कूल गया तो 12th पास करके उसको ग्रेजुएशन करने का ना, वो होता है भक्ति योग। योगा मतलब भक्ति योग। लेकिन अगर 4th क्लास में फंस गया, कर्म योग। आज 4th फेल बोलते हैं ना, ये 4th फेल नहीं, 5th फेल। पहले 5th में बड़ा एग्जाम होता था। 5th फेल, 8th फेल, 10th फेल। तो 5th फेल ले लो कर्मयोगी, 8th फेल ले लो ज्ञान योगी, 10th फेल ले लो दिस इज अनदर योगी। बट भक्ति योगी मतलब पास हो गया, 12th पास हो गया, होता है ना 12th पास, भक्ति योग। ये भगवान की सेवा के बिना कर्मयोग भी नहीं है। योगा मीन्स भक्ति योग। ये है कंटामिनेशंस। जब आदमी भगवान की सेवा कर रहा है लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा बहुत लालसा है, उसको बोलते हैं कर्मयोग। भगवान की सेवा कर रहा है लेकिन भगवान शास्त्र को ढंग से नहीं पढ़ता, अपना इमेजिनेशन करता है, उसको बोलते हैं ज्ञान योग। भगवान की सेवा कर रहा है लेकिन उसको कुछ पावर चाहिए, थोड़ा लोगों में दिखाने का। उसको किसको दिखाएगा, कितने दिन दिखाएगा, जाने वाला है यहाँ से मूर्ख, उसको बोलते हैं ये आपका सिद्धि योग। बट एक्चुअली योग इज भक्ति योग। भक्त कुछ नहीं चाहता। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब दीज आर ऑल कामीज। कामीज मीन्स लस्टी, इनको अपना कुछ चाहिए। कृष्ण भक्त निष्काम, उसको कुछ नहीं चाहिए। और जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। यू गॉट इट? सपोज आपके पास कोई कुछ he comes to you but he is not coming to benefit you, he coming with some agenda, you will give. But somebody comes to you without anything and you are a giver, you will give everything to him. True or not? Krishna gives himself. What giving anything, he gives himself to the devotee. He said, I am your property. So that is actually the privilege of a pure devotee. लेकिन ये आनंद जो होता है भक्त का, क्योंकि दिस इज स्पिरिचुअल, दिस इज ट्रांसेंडेंटल। वो अभी भी तीनों के तीनों अभी मेटेरियल है। कर्मी ज्ञानी योगी तीनों मेटेरियल है, वो स्पिरिचुअल नहीं बने एक्चुअली। When you actually come to the pure spiritual platform and you are free from the material concepts, from material desires, from material ambitions, you are free, then you can taste pure spiritual happiness. लेकिन जब तक there is some contamination, either you have a contamination of karma yoga, jnana yoga, siddhi. True? And most of us, it is not easy to become free from this contamination. We are contaminated to something. Therefore, we get attracted. Why do we get attracted to somebody who has some opulence? Why do we get attracted to somebody who has some power, some siddhi, or somebody who is renounced from this world but he has no taste of Krishna bhakti? We still get attracted because we are not serious. Okay? So if you are really serious, then we get only attracted to bhakti, Shuddha Bhakti Yoga. And Prabhupada says that again and again. He says, I made so many enemies because anything less than Shuddha Bhakti I rejected. So I made so many. That's true. Many people don't understand what we are trying to say. What these people, they don't understand why do we worship Krishna itself. लोग बोलते हैं आप कृष्ण की पूजा क्यों करती, बाकी देवी देवता नहीं है क्या? हैं, लेकिन आप क्या चाहते हो पहले ये बताओ। इंदिरा भोग चाहते हो, करो देवी देवता का पूजा। वैकुंठ धाम नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मुक्ति प्रदाद सर्वेशाम विष्णु एव न संशया, शिव जी का शब्द है। अगर मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, कोई नहीं दे सकता आपको, विष्णु के पास जाना पड़ेगा, कोई नहीं दे सकता। लेकिन लोगों को इसी दुनिया में रह के कुत्ते बिल्ली की तरह इंद्रिय भोग करना है। करो देवी देवता की पूजा, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को मदद नहीं कर सकते, बिकॉज है ही ऐसे घटिया लोग, क्या करोगे उनका तुम? करेक्ट? बट किसी को, सम पर्सन, they worship Shiva, they worship Durga, they worship so many things. We know they are not serious. Bhagavad Gita, what does Krishna says? Kama sata hita jnana yajante anna devata. Now you tell strongly these things, you will make enemies in the society. The fact.
क्या करोगे? बोलते हैं ना, सच बोले मारे लट्ठा। तो दुनिया में सच बोले लोग दुश्मन बन जाएंगे आपको, बिकॉज उनको गुस्सा आता। उनको बोलो शर्म नहीं आती, इंद्रिय भोग की इच्छा लेके भगवान के पास जाते हो। अपनी कभी भी आदमी अपनी वीकनेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो भी आदमी देवी देवता के पास जाता है वो इंद्रिय भोग की इच्छा लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि देवी देवता आध्यात्मिक सुख नहीं दे सकते, उनके हाथ में नहीं है। तो इंद्रिय भोग की इच्छा लेके जा रहा है, लेकिन एडमिट करेगा? नहीं करेगा कोई। अपनी वीकनेस कोई कभी एडमिट नहीं करेगा। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को कितनी बारी बोले, आप इंद्रियों को कंट्रोल करो। गुस्सा आता था उसको। तुम चाहते हो कि विष्णु का दुश्मन बनोगे, ये सब छोड़ो। आपको कोई दुख नहीं है दुनिया में, आपका दुख यही है कि आपका मन काबू में नहीं है, आपका इंद्रिय वश में नहीं है। तो क्या हिरण्यकशिपु खुश हुआ? क्या गुस्सा हुआ? तो आप समाज में जाके सबको बोलो, भाई देवी देवता की पूजा करते हो, लेकिन एक चीज़ समझ लो, आप इंद्रिय भोग की इच्छा से फंसे हुए हो, इसीलिए जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? आपको आध्यात्मिक सुख देवी देवता दे सकते हैं? नहीं, कभी नहीं दे सकते, कभी नहीं दे। उनका वो प्रिविलेज है ही नहीं। तो क्यों जा रहे हो? आपको इंद्रिय भोग चाहिए। इसलिए भगवत गीता में सर्टिफिकेट कृष्ण ने दिया है, कामय तस्त्र हित ज्ञाना यजन्ते अन्य देवता। क्यों आदमी देवता की पूजा में जाता है? क्योंकि उसे इंद्रिय भोग की बहुत इच्छा है। लेकिन भगवान की सेवा में जो आता है वो अलग चीज़ है। लोगों को तो ये भी जानने का मन नहीं है भगवान क्या है, उनको इंद्रिय भोग चाहिए। अगर भगवान से मिले, किसी गधे से मिले, लोग गधे की पिक्चर की पूजा करते हैं। किसी का पूजा रूम देखो आजकल हंसने को आता है, कुछ भी लगा देंगे। उनको आध्यात्मिक ज्ञान का इतना अच्छा नहीं है। आत्मा क्या है, भगवान क्या है, कोई इच्छा नहीं। इंद्रिय भोग प्रबल है मन में और आगे बढ़ना चाहता है। क्या कर सकते हो? ठीक है, तो ये गीता है, इस चीज़ के लिए नहीं है। हाँ, गीता में सत्य समझा है, उसमें अपना घमंड को अलग रख देना चाहिए। कौन बोल रहे हैं भगवत गीता? कृष्ण जी। उनकी पूजा सारे देवता लोग करते हैं, सारे आचार्य लोग करते हैं। उस अथॉरिटी को आप नेगेट नहीं कर सकते। पहले आप भगवत गीता को अथॉरिटी मानिए, तब आप बात कर सकते हैं। कोई आदमी बोले भगवत गीता को नहीं मानता, हम उससे बात भी नहीं करना चाहते। बकवास है, वेस्ट है। अब भगवत गीता में अभी इसमें बताया गया है कि क्या कि जब भगवान की सेवा में आदमी लगता है तो उसके बहुत अलग चीज़ का अनुभूति होती है। क्या चीज़ का अनुभूति होती है? आध्यात्मिक आनंद। और इतना आनंद है, उसको बोलते हैं बाउंडलेस ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। जो इंद्रिय भोग का आनंद है, जिसके पीछे हम इधर उधर भगते रहते हैं, वो तो इतना है ना, क्षणिक है, थोड़े टाइम में बंद हो जाता है और ना ही आपको पूर्ण रूप से सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन भगवान की सेवा में जो आनंद है उसको बोलते हैं अनंतम। हाँ, जैसे इसी श्लोक में ये बोलता है लभन्ते अनंतम, अनलिमिटेड। हाँ, बहुत श्लोक में इसकी बात करा गया है, अनंतम। सवय मना कृष्ण, सो मेनी श्लोकस। सो आइडिया इज दैट वी एक्सपीरियंस अनलिमिटेड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जब हम भगवान की सेवा में शुद्ध रूप में जाते हैं। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा रिजल्ट भगवान उसको देते हैं। जो लोग ये छोटे चीज़ें बच्चों की तरह मांगने आते हैं, भगवान पूर्ण कर देते हैं और उसी में वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको असली भगवान से वर चाहिए तो आप आध्यात्मिक सेवा मांगिए, सबसे बड़ा चीज़ है। अगर आपको असली भगवान से चाहिए तो आप भगवान से आध्यात्मिक सेवा मांगिए, तब आपको। और सेवा में माम नियुंक्ष, भगवान मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दो। क्या अपॉइंटमेंट लेटर है? आपको आध्यात्मिक सुख मिलेगा, जिसकी बात हो रहा है इसमें। उसके बड़ा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन क्या करें, लोग पीपल आर नॉट सीरियस, बह जाते हैं। आपूर्य माला अचलत प्रतिष्ठा नहीं है। समुद्र में जब नदी आती है तो समुद्र हिलता नहीं है, लेकिन हमारा मन एक किधर से वेव आया उसी में हिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज वाई, बिकॉज पर्सन अंडरस्टैंड देयर इज नो ग्रेटर गेन। इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं। आदमी फिक्स हो जाता है, हिलता नहीं है। आप कुछ भी और चीज़ करेंगे, देवी देवता का पूजा आज ये करेंगे, कल दूसरा करेंगे, उसमें फिक्स नहीं हो सकते। कोई आदमी बोलता है मैं देवी देवता पूजा में फिक्स हो गया है, वो पाखंड कर रहा है, पाखंड कर रहा है। भक्ति खाली विष्णु की होती है, कोई और भक्ति नहीं हो सकती। देश भक्ति क्या है, समाज भक्ति, ये सब बकवास है। भक्ति खाली कृष्ण की होती है।
क्योंकि उसमें लेन देन है, किसी और चीज में देवी देवता का भक्ति में लेन देन होता है, असली भक्ति नहीं हो सकती। कुछ है, अभी आपके पॉलिटिशियन लोग, इलेक्शन आ रहे वाला कर्नाटक में, बोलेंगे कर्नाटक भक्त, कन्नड़ा भक्त, आजकल नया चल गया, हिंदी को ही मिटाओ। अभी शायद बोलेंगे हिंदी में प्रवचन नहीं दे सकते, कन्नड़ा में ही दो, तरह तरह की चीज़, हिंदी में बोर्ड निकालो। तो जो भी है अपना भक्ति दिखा रहे हैं, कन्नड़, सब पाखंड है, सब पाखंड। अभी इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए नाटक शुरू हुआ है, इलेक्शन के बाद बंद हो जाएगा। असली भक्ति होती है खाली कृष्ण की। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है? अनलिमिटेड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। बाकी कुछ भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, पर मेन चीज आपको मिलता है, क्या चाहिए हमको? हमको तो हैप्पीनेस चाहिए ना। कृष्णा रेसिप्रिकेशन इज ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेन। देवी देवताओं का रेसिप्रिकेशन होता है मेटेरियल प्लेन, वो भी मेटेरियल है। सो व्हेन यू वर्शिप देवी देवता, व्हाट हैपेंस टू यू? वट एवर बोन यू गेट, जो भी आशीर्वाद मिलेगा वो आशीर्वाद भी नष्ट हो जाएगा, आप भी नष्ट हो जाओगे और आपके देवी देवता भी नष्ट हो जाएंगे। समझो, वो भी नहीं रहने वाले। देवी देवता इज ओनली ए पोस्ट। आज एक आदमी, आज कल दूसरा आदमी होगा, वो भी नष्ट हो जाएंगे। क्या मूर्खता की तरह पड़े हो? तो जो आदमी मूर्ख होता है, इसमें शास्त्र में लिखा गया है नष्ट बुद्धया, जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वो देवी देवता की पूजा में जाता है। मूर्ख, जिसको बुद्धि है, उदार दिही अकाम सर्वो कामो वा मोक्ष काम उदार दी। भागवत में 2nd कैंटो पढ़िए, अगर ज्ञान चाहिए तो पढ़िए। अपने मन बना के कुछ बनाना बनाइए, कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन शास्त्र को पढ़िए। 2nd कैंटो में बहुत क्लियरली लिखा है, इंद्रिय भोग ये चाहिए तो इस देवी देवता के पास जाओ, ये इंद्रिय भोग चाहिए तो इधर के जाओ, आपको थोड़ा हेल्थ चाहिए तो सूर्य के पास जाओ। लिस्ट नहीं बताएंगे, लिस्ट बताएंगे लोग उधर ही भागेंगे, क्योंकि जनरली लोग इंद्रिय भोगी के लिए ही इच्छुक हैं। उनको बोलो, कहाँ पे हुआ था, कहीं कुबेर पूजा, हजारों लोग इकट्ठा हो गए, कुबेर का पूजा होगा, आओ आप धनी बन जाओगे। सब फैमिली, एक फैमिली लाखों दे के करोड़ों उस आदमी ने इकट्ठे किए। ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि बताओ मैं तेरे को एक तरीका बताता हूँ, करोड़ों रुपए बन जाएंगे तेरे, ऐसे एक एक करके सुनेंगे। तो मैं लिस्ट नहीं बताता, बट उसने बताया हर देवी देवता का नाम, अगर ये चाहते हो तो इसके पास जाओ, ये चाहते हो तो इसके पास जाओ, तुमको अच्छा हेल्थ चाहिए, सुंदर बीवी चाहिए, धन चाहिए, जो भी अच्छे फॉलोअर्स, इनके पास जाओ। लिस्ट दिया, बड़ा लिस्ट 2nd कैंटो में। लेकिन उस लिस्ट के बाद बोला है, अगर आपके पास बुद्धि है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दिही, अगर आपकी बुद्धि थोड़ा विस्तार है, तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम, पूरे उत्साह से, तीव्र मतलब तीव्र होता ना, फुल एनर्जी से, तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम, पुरुषम परम, कृष्ण की सेवा करो। देवी देवताओं को टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम, उदार, लेकिन उसके लिए थोड़ा उदार दी चाहिए। थोड़ा बोलते हैं ना, नॉर्थ इंडिया बोलते हैं सिर में गोबर भरा है, तो जो गोबर भरा होता है देवी देवता की पूजा में जाता है। लेकिन जिसके पास सिर में थोड़ा दिमाग है, वो खाली विष्णु की पूजा करता है, बिकॉज उसमें क्या मिलता है? बाउंडलेस ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। और उसके बाद देयर इज नो गेन ग्रेटर देन गेन, उससे बड़ा चीज नहीं है। दैट इज द हाईएस्ट थिंग, टोटल सेटिस्फैक्शन। आपको क्या चाहिए? मेनली वी वांट टोटल सेटिस्फैक्शन, दैट विल कम। सो देयर इज नो नीड टू डाइवर्ट आवर अटेंशन एनीवेयर, वी शुड फिक्स आवर अटेंशन ऑन कृष्णा and serve Krishna. Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavad Gita ki.